تو کریم ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے کر دے کرم، تو کریم ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے کر دے کرم۔ اللہ 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 اللہ، تو کریم ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے کر دے کرم۔ دنیا کے پیار کا قیدی ہوں، مجھے اپنا پیار عطا کر دے۔ دنیا کے پیار کا قیدی ہوں، مجھے اپنا پیار عطا کر دے۔ میں کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں، اے مولا مجھ کو رہا کر دے۔ اللہ 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 اللہ، تو کریم ہے کر دے۔
اقرا تعلیم اور اطفال میں آنے والے تمام معززین مہمان گرامی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹیج کے فائز ادا کرنے کے لیے قاری محمد شفیق صاحب جو کہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام والدین کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. یہ جو حصہ ہے نا، میرے اس ہاتھ کا جو اشارہ ہے درمیان والے گیٹ سے اس طرف، یہ عورتوں کا حصہ ہے. یہاں پہ کوئی مرد حضرات نہ بیٹھیں. مردوں کا یہ حصہ ہے. اگر کوئی مرد بیٹھے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں تو وہ ادھر آ جائیں. جو مرد حضرات بیٹھے ہیں وہ ادھر آ جائیں. عورتوں میں کوئی مرد نہیں، مردوں میں کوئی عورت نہیں. اللہ آپ کو جزا خیر دے. چار کتنے یار جلدی کر یار. چارجنگ کی جگہ کچھ ہو گیا ارسلان دو میں چاہتی ہوں چارجر نال باقی چیزیں یہ بھی تھیں نام لیکن اتنے چاہتی ہے جرا وہ والا کمپیوٹر لے بیٹھے انہیں کو. ٹھیک ہے. یو ایس بی کتنا ہے میرے کو دے دے. بہت 2023 یہ 23ویں تقریب ہے ہماری سالانہ. الحمدللہ ہمارے ادارہ کو 23 سال ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے. اللہ رب العزت ہمارے اس ادارہ اقرا تعلیم الاطفال فاؤنڈیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ادارے کی برکات پورے علاقے میں اپنی طرف سے اس کا نزول فرمائے. آپ والدین کے بچے اور بچیاں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں سے حفظ کر کے مکمل کر کے جا چکے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں اور آئندہ بھی الحمدللہ داخلے ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور خصوصاً اقرا تعلیم الاطفال فاؤنڈیشن کے پرنسپل اور ان کے گھر والوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. میں تمام والدین کا ابتدا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں، اپنے اساتذہ کرام کا، اپنی ٹیچرز کا، تمام کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جن کی محنتیں اور جن کے صبر کی وجہ سے آج کی یہ تقریب الحمدللہ اپنی ترقی کی طرف گامزن ہونے لگی ہے. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے. ابھی آپ کے سامنے ہمارے ننھے منھے اسٹیج سیکرٹری وہ تشریف لائیں گے اور پروگرام کا آغاز کریں گے. انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام پسند بھی آئے گا، ثواب بھی ہوگا. ایک بات ذہن میں رکھیں، علماء کرام بھی تشریف لانے والے ہیں، ابھی پرنسپل صاحب نے بھی پہنچنا ہے، مہمانوں نے بھی آنا ہے. جم کر بیٹھیں. انشاءاللہ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے، کیونکہ یہ دینی پروگرام ہے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من
معزز سامعین کرام، حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں منتہا عباس کو، وہ آئیں اور آ کر حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، پڑی ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑی ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیری ہو جاؤں راضی ہے تاکہ وہ روزے سے دانشان کھانے سے بچے۔ اسی موضوع کو عنوان بنا کر ایک ٹیبلو پیش کرنے آ رہے ہیں حافظ ولید عدنان اور نور کے لیے۔ عالم با ملاحظہ، بادشاہ کا اقبال بلند ہو، رعایا آپ کے مسائل آپ کی حضور پیش کرنا چاہتی ہے، اجازت ہے پیش کیا جائے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضور جان کی امان پاؤں تو ایک عرصہ آپ کے گوشگوار کر سکتا ہوں؟ گوشگوار کی جائے۔ حضور میری ماں بیمار ہے، کچھ رقم درکار ہے، میں ایک غریب مہاجر ہوں۔ وزیر جی ضلع الہی، انہیں ہمارے بیت المال سے 300
जान की अमान पाऊँ तो हुजूर एक सवाल पूछ सकता हूँ? इजाजत है। क्या जिस तरह आपने दुनिया के सफर के राहत और आराम के इंतजाम के लिए लाहौर लश्कर और साजो सामान इकट्ठा किए हैं, क्या इस तरह आपने आखिरत के सफर के लिए कोई इंतजाम किए हैं? तुम फिर से बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो। आखिरत में कोई कुछ सामान नहीं लेकर जाता, ना कोई लाओ लश्कर, ना कोई साजो सामान। आखिरत में बंदा तन्हा जाता है और वापस लौट के नहीं आता। अगर आपका छोटा सा सफर भी होता है तो महीना पहले इसकी तैयारी आपकी अमानत आपकी बारी हो। दरबार में खास किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने अभी फिर रहे हैं, सीटें बहुत ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ़ रखें। और ये जो बच्चियाँ कभी बाहर कभी अंदर, ये जो ड्यूटी वाले साहबान, ये दरअसल हारून रशीद एक बादशाह गुजरे। उनके दौर में एक मजजूब थे जिन्हें सरदारुल मजजूबीन कहा जाता है, सैयदुल मजजूबीन। मजजूब होता क्या है? आजकल आपको लाहौर की सड़कों पर, फुटपाथों पर भी मजजूब मिलेंगे। ये नहीं होता मजजूब। मजजूब वो होता है जो अपने अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत को समो लेता है, उसे दुनिया का कुछ पता ही नहीं होता क्या है। तो वो मजजूब थे जिन्हें सैयदुल मजजूबीन कहते हैं। उनका नाम था बहलोल। क्या नाम था जी? बहलोल। ये जितना भी किया गया ना, ये सारा बहलोल और हारून रशीद का एक किस्सा था। उसको थोड़ा सा तब्दील करके अलाउद्दीन बादशाह और फकीर के ढंग में किया गया है। असल में ये है, कहना ये चाहते थे बच्चे आखिरत की तैयारी करें। ये कहना ये चाहते थे आखिरत की तैयारी करें। इसलिए वो फकीर भी बनाया गया, बादशाह को बिठाया गया। और बादशाह को फकीर ने कहा देखो तुम बड़े बेवकूफ़ हो। उसने कहा नहीं तुम बड़े बेवकूफ़ हो। हालांकि बहलोल वो शख्स था जब आज़ान होती थी कभी उसकी नमाज फ़र्ज़ कज़ा नहीं हुई थी, तहज्जुद उसकी कज़ा नहीं हुई थी। वो लोग थे जो मजजूब होकर भी अपने आप को समझते थे। आज हमें जो कभी नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए। दूसरी बात ये है, बहलोल वो थे एक दिन कब्रिस्तान में बैठे अपना पाँव मट्टी में डाल के घर बना रहे थे, खेल रहे थे। तो जो हारून रशीद की बीवी थी उसकी सवारी गुजरी, तो उन्होंने देखा तो कहा बहलोल क्या बना रहे हो? तो वजद में कहा मैं जन्नत के घर बना रहा हूँ। कहा बेचोगे? कहा हाँ। कहा कितने का? कहा 1 दिरहम का। 1 दिरहम निकाला और दिया, और उन्होंने ऐसे दायरा लगा के कहा ये तेरा घर हो गया। उसके बाद चले गए, वो भी चली गई। रात को ख्वाब में हारून रशीद ने देखा जन्नत है, नेक बादशाह होते थे, शराबी कबाबी नहीं होते थे, तहज्जुद गुजार होते थे। हारून रशीद ने कहा, सोया, ख्वाब में आया कि जन्नत की सैर कर रहा हूँ। देखा तो जुबैदा का महल लिखा हुआ है। अंदर जाना चाहा, बीवी थी ना, अंदर जाना चाहा तो अंदर से फरिश्तों ने दरवाजे से रोक दिया। कहा आपको इजाज़त नहीं है, ये आपकी बीवी का महल है। उठा तो फौरन हजरत जो जुबैदा थी उसके ख्वाबगाह की तरफ दौड़ा और जाके उसने कहा कि क्या मामला है कि एक जन्नत का घर दे दिया। बादशाह सलामत ने अपनी सवारी तैयार करवाई और बादशाह सलामत बहलोल को ढूंढने निकला। जब वो कब्रिस्तान में गया तो बहलोल वहीं बैठा, वो उसी तरह घर बना रहा था। कहा कितने करेगा बादशाह? कुछ सौदे एक के होते हैं, कुछ सौदे अनडिठे होते हैं। तेरी बीवी ने अनडिठा सौदा किया, 1 दिरहम में था। तू जन्नत का महल अपनी बीवी का दे के आया है, तुझे आदि सब। मोहतरम मुकर्रम हमारे उस्ताद शेखुल हदीस और उनका बयान पुरमगज़ बयान होने वाला है। अभी आपके सामने उनके घर वालों का और सरोसामा का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खुशामदीद कहना चाहता हूँ कि वो अपनी अपनी जगह पर बिठा दें।
बदनज़मी से बचाएं। पे भेज रहे हैं। या अल्लाह हम सबको बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। माशाअल्लाह। शील्ड का जिम्मेदार भी आना चाहिए बीच में, काशिफ भाई। सर मेरी शीट किधर है? जी मेरी शीट कहाँ है? मैं कराता हूँ कोई, उसका भी बंदोबस्त। हिफ्ज़ कुरान और स्कूलिंग के साथ साथ दीगर सरगर्मियों में भी अपनी नज़र रखे हुए है और बच्चों को तैयार कर रहा है। आपके सामने अभी बच्चे तशरीफ लाने वाले हैं और सर सलामत साहब इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। सामने बच्चे पेश करेंगे। तसल्ली से, तहम्मुल से, इस्तिकामत से तशरीफ रखें। प्रोग्राम अपनी अगली मनाज़िल की तरफ चल रहा है और इंशाअल्लाह हमारे मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात के तावन की और आप हजरात के दाद की ज़रूरत है। चलो मदीने, चलो मदीने, सदा मुसलसल ये आ रही है। चलो मदीने, चलो मदीने, बाहों मदीने, मुसलसल ये आ रही है। चलो मदीने, चलो मदीने। जी आपके सामने सर सलाम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Front kick. 1, 2, 3, 4, 5. Side chain. 1, 2, 3, 4, 5. Double kick. Front kick and side kick. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Side chain. 1, 2, 3, 4, 5. Horseback stance. Down and side blocks. 1, 2, 3, 4, 5. Single punch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Double punch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Easy. मैंने पहले भी जैसे दुआ मांगी, अब भी दुआ के अल्फाज हैं। अल्लाह ताला वहाँ का मंज़र, वहाँ का तमाम तर जो मंज़र है उसकी मंज़र कशी करने के लिए मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान
इरशाद फरमाया है, इन्ना सफा वल मरवत वल बैत अमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा। बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, तो जो शख्स खाना काबा जाकर हज या उम्रा करे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं कि दोनों का तवाफ करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का घर यानी बैतुल्लाह की ज़ियारत हर मुसलमान की तमन्ना है। अल्हम्दुलिल्लाह, इकरा तालीमात फाउंडेशन कुरान पाक की खिदमत के साथ साथ मुजाहिद इकराम की खिदमत में भी अपना किरदार अदा कर रहा है। इदारा हरमैन, जिसके बानी हमारे इदारे के प्रिंसिपल जनाब शेख मंजूर साहब दामत बरकातुहुम आलिया गुज़िश्ता 23 साल से मुजाहिद इकराम की खिदमत में एक ऐसे अंदाज से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इदारा में हर शामिल है। चलाएं सर।
हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। एहराम में वैसे भी बड़ा प्यारा लगता है बंदा, क्योंकि क्या वो मंजर होगा जिस वक़्त आमना के लाल, दुर्रे यतीम, मक्का के दूल्हे, सरकार दो आलम, खातमुन नबीयीन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह एहराम बांध के अल्लाह के घर में आए और उम्रा किया, फिर हज पे भी आए। अल्लाह ताला हमें भी ये बार बार सआदत नसीब फरमाए। मैं दरख्वास्त करूँगा कारी मुजम्मल साहब से कि इसको दोबारा चला दें ताकि बच्चे दोबारा इसको पेश करें। नर्सरी से लेके 10th तक सर शाहिद मंजूर की सरपरस्ती में हमारा इदारा तरक्की के मनाज़िल तय कर रहा है। काफ़ी सालों से के सामने अपनी 9th-10th की कारकर्दगी भी रखे, फुल स्कूलिंग का निज़ाम भी रखे, मेहनती उस्ताद हैं, कामयाब तरीन टीचर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनसे तरबियत लेकर, इनसे पढ़कर बहुत सारे बच्चे बड़े इदारों में काम कर रहे हैं। आज वो बच्चे भी आए हैं, वो बच्चियां भी तशरीफ़ लाई हैं जो इकरा तालीम अल अतफाल फाउंडेशन से अपना सफ़र मुकम्मल करके उसके बाद अगली मनाज़िल तय कर रही हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर और कोई CA कर रहा है। अल्लाह ताला सर शाहिद की मेहनतों को कबूल फरमाए और हमारे असातिज़ा इकराम की मेहनतों को कबूल फरमाए। तशरीफ़ लाते हैं आपकी समातों को मुनव्वर करने के लिए सर अब्दुल रज़ाक साहब। मोहतरम वालिदैन, असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तुलबा व तलबा, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं पिछले साल भी ये बात हुई थी और इस बार ज़िक्र होगा उस अहम शख्सियत का वो कि वो हम में नहीं है। मेरा मतलब मंजूर अहमद साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और करोड़ों रहमतें उन पर नाज़िल करे। ये जो पौधा सन 2000 में लगाया गया और जिसे आप भी देख रहे हैं कि ये सफ़र 23 साल मुकम्मल हो गए और यहाँ तक तय हो गए। और इसमें हमारे मोहतरम प्रिंसिपल शाहिद मंजूर साहब, जो कि अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे, इस सिलसिले को लेके आगे चले। मेरा ताल्लुक़ स्कूलिंग के सीनियर शोबे 9वीं और 10वीं जमात के साथ है और ये सिलसिला सन 2014 में शुरू हुआ और अभी तक ये जारी है और इंशाअल्लाह इसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होगा। हमारे 9वीं और 10वीं के अल्हम्दुलिल्लाह 7 सेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, यानी 7 मरतबा इकरा स्कूल से बच्चे मैट्रिक बोर्ड का इम्तहान पास करके जा चुके हैं और उनकी तादाद तकरीबन कमोबेश 200 के करीब है। और इस साल 2023 में भी तकरीबन मैंने इकरा तालीमुल इत्फाल स्कूल से तकरीबन 50 के करीब बच्चों का रेगुलर दाखिला जो है वो भेजा गया है। और पढ़ाई के मामले में क्योंकि मेरा शुरू से ही ताल्लुक़ है, जब से ये 9th-10th का
सिलसिला शुरू हुआ। मेरे साथ बाकी जो मेरे टीचर्स हैं, जो मेरा स्टाफ है, जो मेरे साथ काम करता है, वो इंतहाई मेहनती और बड़ी जाफशानी से काम करता है। इस वक्त भी हमारा एक सिलसिला चल रहा है स्कूल के अंदर, जो अप्रैल के तकरीबन 12 या 13 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। वो है टेस्ट सेशन का सिलसिला। हमारा तरीक़ाकार ये होता है कि हम कम से कम 2 बार कोर्स को मुकम्मल करते हैं और तीसरी बार हम ये टेस्ट का सिलसिला लेकर चलते हैं, और जो बच्चों की बेहतरीन कामयाबी का सबब बनता है। कामयाबी के लिए एक अहम बात है, एक ट्रायंगल होती है जिसमें वालिदैन, टीचर और स्टूडेंट हो। ये 3 लोग जब मिलकर काम करते हैं तो इसका नतीजा 100% होता है, और वो होता है जो हम चाहते हैं, जो वालिदैन चाहते हैं कि मेरा बच्चा इस हद तक कामयाब हो। और अगर इसमें से एक भी कमी पेशी दिखाए, टीचर ना सही पढ़ाए तो मसला आ जाता है, बच्चा खुद ना पढ़े तो प्रॉब्लम आती है, और वालिदैन अगर तवज्जो ना दे तो भी मसला है। अक्सर ये होता है कि वालिदैन इन चीज़ों से बरी और ज़िम्मा हो जाते हैं कि बच्चा स्कूल चला गया, अकेडमी चला गया तो अब कामयाबी नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप बेहतरीन कामयाबी चाहते हैं, आज के इस मौजूदा दौर में कंपटीशन है। आपने देखा मैट्रिक में बच्चे अगर 1100 नंबर हैं तो उसमें से 1100 भी लिए गए, 1100 से कम 2, 4, 5 नंबर, इतना कंपटीशन है। और इसके लिए मैं वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि अगर आपके बच्चे 9th 10th में जो हमारे पास प्री 9th की शक्ल में आ गए हैं तो प्लीज़ इस पर मेहनत कीजिएगा, स्कूल के साथ कोऑपरेट रखें, PTM में ज़रूर तशरीफ़ लाया करें ताकि हम बच्चों के सिलसिले में बात कर सकें। हालिया जो पिछला हमारा रिज़ल्ट था इकरा तालीमुल इत्फ़ाल का मैट्रिक का, उसमें एक बच्ची जिसने टॉप किया था, मानूर आसिफ, 1024 नंबर लेकर, शायद आज उसे एजाज़ी शीट भी दी जाएगी। और मेरी दुआ है कि ये जो बच्चे अभी इस साल 10वीं का इम्तहान दें, इससे भी ज़्यादा नंबर लें और मेहनत करें। मैं उन बच्चों को भी मुबारकबाद देना चाहूँ जिन्होंने आज कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल किया, और हमारा स्कूलिंग के शोबे में एक अहम मरहला ये भी है कि हम इसको छोड़ते नहीं हैं। अगर स्कूलिंग की हो रही है तो उसमें 45 मिनट का पीरियड शोबा हिफ्ज़ का रखा जाता है ताकि इनकी दोहराई मुकम्मल होती रहे, इनकी मंज़र पक्की होती रहे। और उस सिलसिले में जो मेहनत करने वाले हमारे कारी हैं, हमारी कारी अजमल माविया साहब, जो कि इस ड्यूटी को सर अंजाम देते हैं। स्कूलिंग के शोबे में जो टीचर हैं हर सब्जेक्ट के अलग हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं साइंस टीचर हूँ, मैं मैथमेटिक्स और बायो के जैसे सब्जेक्ट लेता हूँ। एक हमारी और टीचर है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, इंग्लिश और उर्दू है, और इसी तरह मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात है। तो ये सारे लोग अपनी अपनी जगह पर बड़ी अच्छी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। हम अपने बच्चों को एक और बात भी कहते हैं, अक्सर एक रिवाज है, एक फैशन समझ लें, मैं उसके ज़्यादा हक में नहीं होता हूँ कि जी बच्चे का ट्यूशन जाना या एकेडमी जाना बड़ा कंपल्सरी या लाजमी समझा जाता है। अगर जो बच्चे नहीं जाते तो लगता है जैसे इनकी पढ़ाई अधूरी है। मैं ज़ाती तौर पर इसकी ज़रा मुखालफत करता हूँ, क्योंकि इकरा तालीमुल इत्फ़ाल में मैं गारंटी देता हूँ कि जो बच्चा सिर्फ वो स्कूल का काम जाके बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर ले तो उसके अच्छे नंबरों की गारंटी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसे पढ़ाया है। लेकिन वो अक्सर मेरे सामने ये केसेस आते हैं, जी बच्चा ट्यूशन का काम कर रहा है, बच्चे ने आज ट्यूशन का टेस्ट देना है इसलिए स्कूल का टेस्ट नहीं किया। तो ऐसे बच्चे 2 कश्तियों में सवार हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता कि स्कूल की पढ़ाई बेहतर करनी है या ट्यूशन की करनी है। तो इस पर ज़रा नज़र-ए-सानी कीजिएगा। इकरा तालीमुल इत्फ़ाल अपने बच्चों को कभी भी एकेडमी या ट्यूशन रेफ़र नहीं करता। हाँ, अगर किसी बच्चे की कोई ज़ाती कमज़ोरी है तो वो उसका कोई हल निकाल सकता है, कोई ट्यूशन हायर कर सकता है या कोई किसी के घर भेज सकता है या किसी को बुला सकता है, ये एक एक्स्ट्रा मामला है। लेकिन ये जो एक बना हुआ है, स्कूल से ज़्यादा फ़ीस एकेडमीज़ में दी जाती है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और इकरा तालीमुल इत्फ़ाल वाहिद वो अदारा है जो मैं गारंटी से कहता हूँ अपने इलाके में बहुत माकूल फ़ीस के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जाते हैं तो दाएँ बाएँ हमारे स्कूल हैं,
फीस सेक्शन पता कर लीजिएगा तो अंदाज़ा हो जाए कि हमारे मोहतरम प्रिंसिपल शाहिद मंजूर साहब इस सिलसिले में कितनी ज़्यादा शफकत बच्चों पे फरमा रहे हैं। अब इसके अलावा एक और बात, जो हमारे साइंस मज़ामीन का हिस्सा होता है वो प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके नंबर बोर्ड पे काउंट किए जाते हैं और ये भी तय है कि अगर प्रैक्टिकल जैसे सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो जाए तो उसे सब्जेक्ट में भी फेल कर दिया जाता है। तो हमने 9th की, क्योंकि बोर्ड प्रैक्टिकल नहीं लेता, 10वीं क्लास में जाके लेता है, तो इस सिलसिले में हमने ये कभी नहीं सोचा कि जी हमने इन्हें 10वीं में ही जाके प्रैक्टिकल करवाना। हमारे स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने देखा कि 9th के प्रैक्टिकल 9th में मुकम्मल हो गए और 10वीं के 10वीं में मुकम्मल। और अगर हम लैब के ऑपरेटर्स यानी उसमें मौजूद सामान की बात करें तो इंतहाई आला क्वालिटी का, मैं दावे से कहता हूँ, मेरे सामने दाएं बाएं स्कूल हैं, उनकी लैब में ऐसा सामान मौजूद नहीं है, क्योंकि वो सामान मैंने खुद परचेज़ किया मोहतरम शाहिद मंजूर साहब की इजाज़त से। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपनी तारीफ के अदारे के लिए कुछ कहूँ, तो ये आपको अमलन करके दिखाएं। अभी तक अगर मैं बात करूँ हमारे 9th 10th के बच्चों की, और ये बात ऑन द रिकॉर्ड है, रजिस्टर मौजूद है, और वो बोर्ड का रिजल्ट है, स्कूल का रिजल्ट नहीं है। हर बार हमारा रिजल्ट 100% होता है और अभी ये 2023 है और इसका रिजल्ट मैं पहले से ही बता देता हूँ, इस बार भी हमारे मैट्रिक के तमाम बच्चे बेहतरीन और अच्छे नंबरों से पास हों। अभी पेपर भी नहीं हुए, लेकिन अपने पढ़ाने पर एतमाद है, अपने टीचर्स पर एतमाद है, और ये सारा काम हम शाहिद मंजूर साहब की सरपरस्ती में और हमारी वाइस प्रिंसिपल मिस सीमा मुनव्वर और हमारी एक सेक्शन हेड कोऑर्डिनेटर मिस अस्मा अजीज़ और उनके साथ मोहतरम कारी अजमल माविया है, जो ये सब लोग मिल के मुआवनत करते हैं और ये निज़ाम चलता है। आखिर पे मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ उन बच्चों को जिन्होंने ये कुरान के शोबे में हिफ्ज़ किया, मुकम्मल किया। अल्लाह इनके वालिदैन को सलामत रखे। इन बच्चों को ये जो अमल, जो ये सादत इनके हिस्से में आई, वो इसको लेके आगे चले और जो आगे जो मंजिल सोची हुई है उस पर ये पूरा उतरे। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब मोहतरम शाहिद मंजूर साहब का। अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत, ताकत दे ताकि ये निज़ाम को मज़ीद आगे लेके चलें और उन बच्चों के लिए दुआ करूँ, अल्लाह इन बच्चों को बड़ी कामयाबी अता करे और वो कामयाबी अता करे जिसके लिए वालिदैन ने इनके लिए सोच रखी है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी सर अब्दुल रज़ाक साहब। आपके सामने हमारे शोबा स्कूलिंग के बारे में और 9th 10th के रिजल्ट के बारे में बात कर रहे थे। अभी इंशाअल्लाह हमारे बच्चे प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं दावत दूंगा अपने नन्हे मुन्ने स्टेज सेक्रेटरी को वो तशरीफ़ लाएं और अगले मेहमान को दावत दें। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, इंग्लिश तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ तैयबा शहज़ादी को, वो आए और आकर इंग्लिश तकरीर पेश करें। Honorable teachers and my school fellows, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, by the grant of Allah Almighty, I have got an opportunity to deliver a speech on the topic of education. What is the meaning of education? Education means of achieving a world of progress, justice, equality for all. It endorses the intelligence of human being, develops his skills, and enables him to be industrious. Formal education. Formal education is basically a practice of learning where a human learns basic, academic, or some trade skills for his living. Informal education. Informal education
significance. Education is one of the most important and mandatory elements in the life of a student. It helps a student to do analysis while making important decisions in life. It gives all the necessities of awareness and good about for living happily. Education is most important. Life is useless and effortless about education. Economic condition of backward community and non-availability of equipment are some major problems which are solved by development of education. Thus, in the end, we find that education is a significant factor. True education can humanize a person. Education is for all. Thank you. सच्चाई खिलाफो किरदार की बुलंदी का नाम है, सच्चाई मोमिन का शिआर है, सच्चाई ईमान का वतीरा है, सच बोलने वाला अल्लाह का महबूब है, सच्चा शिफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तहिक है। टैबलो सच पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ क्लास अव्वल के तलबा को, वो आए और आकर टैबलो पेश करें। इकरा तालीमुल अतफाल फाउंडेशन के बच्चे आपके सामने एक टैबलो लेके आए हैं। उन्वान है सच, और जो आप आवाज़ सुनेंगे वो यही होगी कि झूठ मत बोलना। मैं इसमें बच्चों की तरतीब बनते बनते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि ईमान वाले के सीने में दो चीज़ें इकट्ठी नहीं रह सकती। उसकी एक ज़िद है, या उसके अंदर ईमान रहेगा या झूठ रहेगा। और आजकल हमारे बाज़ारों में, दुकानों में, हमारे कामों में हर जगह पे झूठ बोला जाता है। अल्लाह ताला की पनाह, इतना झूठ बोला जाता है कि देखने वाला समझता है कि शायद ये सच बोल रहा है, हालांकि झूठ होता है। कुर्बान जाऊँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने जो जमात तैयार की, आपने जो लोग तैयार किए, आपने जो अफराद तैयार किए, वो सहाबाए किराम थे। और सहाबाए किराम इतने अजीम लोग थे, कभी उन्होंने झूठ ना बोला। पहले शायद बोलते रहे होंगे, जब ईमान उनके सीनों में आ गया, जब ईमान उनके सीनों में मुज़य्यन हो गया, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। कहा मैंने इनके सीनों को ईमान के साथ मुज़य्यन कर दिया। तुम अपने घरों को सजाते हो, अपने बेडरूमों को सजाते हो, अपने घरों को सजाकर उनको दूसरों को दिखाते हो, आओ देखो कि हमने अपने घरों को सजा लिया है। कुर्बान जाऊं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपने सहाबाए किराम के ईमान की इतनी पालिश की, इतना सजाया कि खुद रब्बे कायनात ने कहा, ऐ मेरे हबीब मेहनतें तेरी थी, रंग ले आई है, सच इनके सीनों में रख दिया गया है। सच असल में ईमान है। और सबसे बड़े ईमानदार, सबसे बड़े सच्चे उन्हें अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, इसीलिए उनका लक़ब पड़ा सिद्दीक। सिद्दीक सदाकत से है, और सदाकत का मंबा हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह करोड़ रहमतें, करोड़ बरकतें, अरब रहमतें नाज़िल फरमाए आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर, और खुद सच्चे हज़रत सिद्दीक अकबर और फारूक आज़म पर। आपके सामने टैबलों के लिए बच्चे खड़े हैं। उन्वान है सच बोलना, मतलब झूठ मत बोलना। चलाएं। झूठ में हलाकत, सच्चाई में निजात है। झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। झूठ बोलने वाले से फरिश्ते दूर भागते हैं। सच्चाई इंसान को निजात अता करती है। सच्चाई फलाह व कामयाबी की ज़मानत है। सच्चाई मोमिन का शिआर है। सच्चाई अखलाक व किरदार की बुलंदी का नाम है। सच्चाई शिआर अहसन है। सच्चाई ईमान से है। सच्चाई ईमान का शोबा है। सच्चाई मोमिन का वतीरा है। सच बोलने वाला अल्लाह का महबूब है। सच्चा शफाअत रसूल का मुस्तहिक है। सच्चा शफाअत रसूल का मुस्तहिक है। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना।
गुफ्तगू के लिए जब जुबां खोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। किज़्ब वजह हलाकत है, सच है ये बात, सिद्क़ में है निजात। किज़्ब वजह हलाकत है, सच है ये बात, सिद्क़ में है निजात। सिद्क़ बात करने से पहले उसे तोलना, जिससे हो जाता है, जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाता है, चैन खो जाता है, चैन खो जाता है। ऐसा खतरा न हरगिज़ कभी मोलना, जब ज़ुबां खोलना, बच्चियां भी हैं। बेटा सब यहाँ देखो, इधर गुड़िया भी बैठ कीजिएगा। और पीछे बड़े बच्चों को बिठाते जाएं और स्कूलिंग के एतबार से भी, शोभा हिफ़्ज़ के भी एतबार से भी, वक़्त की किल्लत के लिहाज से मैं नाम नहीं बोल रहा, 250 के करीब ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं जिन्होंने अव्वल दो सौ पोजीशनें हासिल की हैं। बच्चे तशरीफ़ ला रहे हैं आपके सामने। कारी ज़फ़र साहब तशरीफ़ फरमा है, नाज़मीन भी तशरीफ़ फरमा है, और ये जो कोऑर्डिनेटर है वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। एक सेकंड, एक मिनट आ रहा है भाई, आप भी वाइट आ जाए। बाजी साहबा से कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। बाजी साहबा से गुजारिश करूँगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। ये वो करीम है जो इकरा तालीम अल अतफ़ाल की दोनों ब्रांचों में, शोभा स्कूलिंग, शोभा हिफ़्ज़, नाज़माना गिरामी हमारे, उन्होंने इनको शील्डें पेश की हैं और इनके सरों पे दस्ते शफ़क़त रखा है, दुआएं दी हैं। हमारी कोऑर्डिनेटर, हमारे नाज़मीन, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी ठीक है, बच्चों को असातिज़ा इकराम लाइन में भेज दें, अपने अपने वालिदैन के पास बच्चे चले जाएं, उसके बाद अगला प्रोग्राम। यकीनन मेरे लिए और आप सबके लिए आज इस सालाना तकरीब में, ख़त्म कुरान की इस तकरीब में बैठना और आना बाइस सआदत है। यकीनन ये तकरीब मेरी और आपकी निजात का ज़रिया बनेगी। आज ये अदारा इकरा तालीमुल अतफ़ाल एक मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है। वो तमाम असातिज़ा इकराम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जिन्होंने अपनी अंत तक मेहनत की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह इस सालाना तकरीब में वो हाफिज़
इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी और आपकी निजात का ज़रिया बनेंगे। इस तकरीब में शामिल होना और वो उस्ताद इकराम जिन्होंने पूरा साल इनके ऊपर मेहनत की, आज वो वालिदैन जिन्होंने घर में माहौल प्रोवाइड किया, आज ये अदारा जिन्होंने दीनी और दुनियावी तालीम का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने भी आज से 10-15 साल पहले इसी अदारे से हिफ़्ज़ किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनियावी तालीम में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मुझे मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था इस फैसले को करना कि आज कि ये दोनों तालीमें कुरान पाक की तालीम का हासिल करना और दुनियावी तालीम का हासिल करना, एक ही छत के नीचे ये तमाम चीज़ों का मुहैया करना, मैं समझता हूँ इस अदारे के सरपरस्त आला मोहतरम जनाब शाहिद मंजूर साहिब और तमाम उस्ताद इकराम और कोऑर्डिनेटर्स जिन्होंने इस अदारे की बुनियाद रखी वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम वालिदैन से गुजारिश है खामोशी इख्तियार करें और ख़ुसूसन हमारे जो बच्चे इधर उधर फिर रहे हैं ये बैठ जाएं। बार बार कहा जा रहा है, जो ऊपर भी नज़र आ रहे हैं चोट भी लग सकती है, अपनी जगह पे बैठ जाएं। कोई वालिदैन अभी जाए नहीं, अभी प्रोग्राम बड़ा बाकी है, अभी 3 बड़े अहम टैबलो बाकी हैं जिनमें आपके बच्चों ने हिस्सा लिया है। फिर ये मेरे दाईं साइड के जो हुस्न बखेरे हुए, पगड़ियाँ सर पर रखे हुए नौजवान जो लड़कपन और जवानी की तहरीस पे हैं, ये हुफ़ाज़ किराम, इनकी दुआ है। इधर बच्चियाँ तशरीफ़ फरमाएँ, इनकी इंशाअल्लाह दुआ है, आप दुआ में शामिल होंगे, इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। कोई बच्चा को बच्ची ना जाए, वालिदैन ना जाए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब मैं अपने इदारा इकरा तालीम अल अतफ़ाल फाउंडेशन के तारुफ के लिए, मुख्तलिफ ऐलानात के लिए और आप हज़रात को खुशामदीद कहने के लिए मैं दावत खिताब देना चाहता हूँ। मैं स्टेज पर उनको बुलाना चाहता हूँ। हमारे प्रिंसिपल जिन्होंने सन 2000 में बहुत सारे उलमाए किराम की दुआओं के साथ, उनकी सरपरस्ती के साथ और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस मेरे पीर व मुर्शद हज़रत सैयद नफ़ीस अल हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके मशवरों के साथ। और ये अजीब लगेगा कि अगर मैं इकरा रौज़तुल अतफ़ाल ट्रस्ट के बानी हज़रत मौलाना मुफ्ती जमील अहमद खान शहीद को याद न करूं। उनके मशवरों के साथ इकरा तालीम अल अतफ़ाल फाउंडेशन की सदर कैंट में बुनियाद डाली और उस वक़्त से लेके आज तक वो पहले छोटा सा कॉम्पल था, फिर बढ़ता गया, आज ये तनावर दरख्त बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह 1500 से ज़ायद तलबा और तालिबात शोबा हिफ़्ज़ में वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया का इम्तिहान दे के यहाँ से जा चुके हैं। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह 850 के करीब तलबा और तालिबात यहाँ पे ज़ेर तालीम है। मैं आपकी समातों को मुनव्वर करने के लिए दावत खिताब देता हूँ हज़रत जनाब सर शाहिद मंजूर साहब को, जो प्रिंसिपल हैं इकरा तालीम अल अतफ़ाल फाउंडेशन और जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इदारा अल हरमैन, वो तशरीफ़ लाएँ और हमें अपना मुदल्लल मुफस्सल बयान सुनाएं। जनाब सर शाहिद मंजूर साहब। तमाम वालिदैन खामोश हो जाएं, तमाम वालिदैन खामोश हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इकरा तालीम अल अतफ़ाल फाउंडेशन की सालाना तकरीब तक़सीम असनाद दस्तारबंदी में मैं तमाम मर्द और ख़वातीन को
खुश आमदीद कहता हूँ कि आप हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये तकरीब अल्लाह ताला के फजल करम से इकरा की 23वीं सालाना तकरीब है। अब तक इकरा तालीमुल अतफाल फाउंडेशन से अहले इलाका के तकरीबन 1500 बच्चे और बच्चियां कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ कर चुके हैं और जिन्होंने वफाकुल मदारस अरबिया पाकिस्तान का इम्तिहान दिया और सनद हासिल की। और इसके साथ साथ स्कूल की मुख्तलिफ़ क्लासों में इंग्लिश मीडियम तालीम हासिल कर चुके हैं। इन साल आज की इस तकरीब में जैसे कि मौलाना ने पहले अर्ज़ किया है 33 तलबा और 21 तालबात टोटल 54 की दस्तारबंदी मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी करवाएंगे। हमारे मेहमान खुसूसी अभी थोड़ी देर तक तशरीफ़ लाने वाले हैं। लाहौर के बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं हज़रत मौलाना यूसुफ खान साहब, वो अपने दस्ते मुबारक से इन तलबा को दस्तारबंदी इनकी करवाएंगे और इनको शील्ड देंगे। आज की तकरीब में गुज़िश्ता सालों में इकरा तालीमुल अतफाल फाउंडेशन से फ़ारिग होने वाले बच्चे और बच्चियों को अज़ाज़ी शील्ड से नवाजा जाएगा, क्योंकि ये वो बच्चे और बच्चियाँ हैं जो आज से कई सालों पहले हिफ्ज़ मुकम्मल करके इकरा से जा चुके हैं और इस वक्त मुख्तलिफ़ कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से अपनी आला तालीम हासिल कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह इनको स्टेज पे बुलाया जाएगा और इनको शील्ड दी जाएगी। ये इसलिए मेरे असातिज़ा ने मेहनत की है, इनको बुलाया है ताकि आपकी इस वक्त जो बच्चे हमारे इकरा में ज़ेर तालीम है, आपके ज़हन में ये सिर्फ शक ना हो कि ये हिफ्ज़ करने के बाद इनका फ्यूचर क्या होगा। हिफ्ज़ करने के बाद बच्चे और बच्ची का ज़हन गैर हाफिज़ की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा अल्लाह पाक उसमें यानी इतनी ज़हनी सलाहियत होती है कि बंदा थोड़ी बहुत भी चीज़ को एक दफ़ा पढ़ ले तो अल्लाह उसके ज़हन में डाल देते हैं। तो इसलिए इन बच्चों को बुलाने का मकसद ये है, कोई बच्चे यहाँ इंशाअल्लाह अपने यहाँ सामने आएंगे, कोई कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटियों में, कोई इस वक्त कंप्यूटर की तालीम हासिल कर रहा है, कोई MBBS डॉक्टर बन रहा है, तो इंशाअल्लाह मौलाना साहब उनका जब वो बच्चे आएंगे तफसीली तारुफ भी करवाएंगे। जैसा कि आपके सामने शोभा है हिफ्ज़ कुरान पाक और शोभा स्कूलिंग के तकरीबन 250 बच्चों को अव्वल 200 पोजीशन आने पर शील्ड दी गई है ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो, क्योंकि ये अभी उस स्टेज के बच्चे हैं, किसी के 3 पारे, किसी के 4 पारे, किसी के 5 पारे। आजकल मीडिया का दौर है जी, बच्चों को इसलिए थोड़ा सा इनकी हौसला अफजाई की जाती है ताकि बच्चों को आगे फर्दर तालीम हासिल करने में इनका ज़ौक़ शौक़ बढ़े। आपको एक दाखिले का हैंडबिल भी दिया गया है जिसमें तमाम शोबाजात की तफसील दर्ज है, दाखिले के बारे में मालूमात भी है। अक्सर वालिदैन को पता है लेकिन कुछ वालिदैन नए बैठे हुए हैं, कुछ उनके अजीज़ों कारण पूरे मुल्की सतह पे इकरा की तरतीब में तकरीबन 3 लाख बच्चे और बच्चियाँ हिफ्ज़ कर रहे हैं और साथ स्कूल की तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारी जो मदर ब्रांच है, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, इस वक्त वो दुनिया में नहीं है, लेकिन ये सारा सदका जारिया उनको मिल रहा है। 1985 से हज़रत मौलाना मुफ्ती जमील साहब और मौलाना यूसुफ लुधियानी मरहूम ने कराची से ये सिलसिला शुरू किया था। उसमें हमारी मदर ब्रांच जो है, मदर जो नेम है वो है इकरा रोज़तुल अतफ़ाल। उसकी आगे शाखें जिसमें इकरा तालीमुल अतफ़ाल है, इकरा मदीनतुल अतफ़ाल है। तो इस तरतीब में पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 3 लाख बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं और इसमें 3 चीज़ें तो मेरे वालिद मरहूम मंजूर अहमद साहब उनको भी अपनी दुआ में याद रखे, ये उन्हीं का पौधा लगाया हुआ है। तो उन्होंने 3 बातें
سب سے پہلے آپ نے اگر بچے کو بھیج رہے ہیں نیت یہ کرنی ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک حفظ کروانا ہے۔ دوسرا انگلش میڈیم اسکول کی تعلیم، اور تیسرا جو ویری امپورٹنٹ ہے وہ ہے تربیت۔ اس تربیت میں الحمدللہ ہمارے اقرا کی بھی پارٹیسپیٹ ہے، میرے اساتذہ کی، میرے ٹیچرز کی، لیکن زیادہ پارٹیسپیٹ آپ لوگوں کی ہے۔ آپ نے گھروں میں اپنے ماحول کو لیکن آپ نے بچوں کو یہاں داخل کرایا ہے تو اس میں یہ 2-3 چیزیں آپ کو ملنی چاہیے۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول انشاءاللہ اسلامی ہوگا تو بچوں پہ بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ اگر آپ والدین نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں اور دین اسلام کے اوپر چل رہے ہیں تو بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج کل میڈیا کا دور ہے، آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، والدہ کہتی ہے آپ بچی کو نماز پڑھیں، لیکن بچی یہ آگے سے اٹھ کے کہتی ہے والد صاحب کو یہ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ گھر کا ماحول بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ عام اسکولوں والے یا دوسرے حضرات اس پہ ممکن ہے کہ تھوڑا بہت واضح و نصیحت کی بات کرتے ہوں، لیکن ہمارا اصل مقصد ہی ہے تو اس میں جیسے بچیاں ہیں ابھی پردے کے والے سے ایک ٹیبلو ہوگا، وہ بھی ہم نے بچیوں کو اس ترتیب سے لانے کے لیے ماں خود پردہ کرے۔ بات سمجھ گئے نا؟ کسی مولوی، فقیر، پیر، عالم کسی سے پوچھ لیں، جہاں شریعت نے اجازت دی ہے گھر میں بھائی سے پردہ نہیں ہے، باپ سے نہیں ہے، اور جن فیملی ممبر سے نہیں ہے وہاں تو شریعت کہتی پردہ نہ کریں، لیکن باقی جہاں شریعت منع کرتی ہے وہاں پردہ ضروری ہے۔ اس لیے ابھی سے بچوں کو اس ترتیب میں لے کے آئیں، اور خاص طور پہ بچوں کو جو حفظ کر چکے ہوں ان کے لیے یہ ہے کہ بھی اپنا سنت کے مطابق اعمال کریں، سنت کے مطابق چہرے پہ داڑھی رکھیں، کسی کو کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی آپ کے باپ نے آپ کو حفظ کروایا ہے، آپ عالم ہیں، آپ قاری ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ کی شکل صورت سے پتہ چل جائے گا بھائی یہ میری بات غور سے سن لیں، یہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ مرنے کے بعد یہ چیز کام آئے گی، مرنے کے بعد یہ چیز کام آئے گی۔ آج یہاں ہمارے علاقے کے ہمارے ساتھ کئی آج بھی کر چکے ہیں، ان کے پوتے دوتے ان کی میسز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، وقت کا کچھ پتہ نہیں، پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا جی، لیکن وقت کا کچھ پتہ نہیں، لیکن وہ جاتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو اقرا میں داخل کروا کے گئے۔ اب ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو جب ٹھیک آپ کے بچے حفظ کر چکے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی فیملی میں ایسے بچے جو یہ ارادہ رکھتے ہیں بتائیں ان کو کہ بھی اقرا کا نظام ہے اور اچھے ادارے ہیں، میرا کینٹ ایریا، مغل پورہ، بغان پورہ صدر قریب ہے تو ہمارے پاس لیں، لیکن اگر دور ہیں آپ کے چیز کے بچے ٹاؤن شپ، ماڈل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، شادرہ میں ہیں، لیکن وہ میرے پاس نہیں آ سکتے، لیکن الحمدللہ میری خدمات حاضر ہیں، میرے پاس آئیں، اگر داخلے میں کوئی دقت ہو رہی ہے کہیں بھی میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کروں گا۔ ہمارا یہ چلتے چلتے بات ہوگی، یہ ان کی منور صاحب کی اہلیہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ان بچوں کا آج اکرام بھی کر رہی ہیں جو ہمارے 54 بچے یہاں سے حفظ کر کے جا رہے ہیں، ان کے اپنے والد، اپنے شوہر کی طرف سے ان کے بیٹے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر سال یہ ترتیب بناتی ہے کہ ان بچوں کی تھوڑی بہت حوصلہ افزائی کے لیے ان کو تھوڑا سا اپنی طرف سے 1,000 روپیہ ہر بچے کو دے گی، تاکہ یہ بچوں کا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کل کو آپ کا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، گھر میں بڑی پرتکلف دعوت رکھتے ہیں، بڑا اعزاز و اکرام کرتے ہیں، ہوٹلوں میں کھانے کھلاتے ہیں، لیکن یہ موقع یہ سب سے بڑا موقع ہے، وہ ہوتا رہے گا، وہ دنیاوی اعتبار سے اس کو ڈاکٹر بن کے اچھی بیوی مل جائے گی، ڈاکٹر بن کے اس کو اچھی تنخواہ مل جائے گی، گاڑی مل جائے گی، لیکن یہ جو چیز ہے اس کو بھی اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اصل بات مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، اس میں ایک چیز میں بتا دوں، جس میں حافظ فیضان امجد ہیں جنہوں نے 11 ماہ میں حفظ کیا، 11 ماہ میں حفظ کیا بچے نے، اسی طرح پچھلے سال بھی بچیاں تھیں جنہوں نے 9 ماہ میں حفظ کیا تھا۔ روزانہ کی 40 لائنز کم نہیں ہوتی، پچھلا سبق بھی یاد کرنا، آگے بھی یاد کرنا، یہ والدین کی بھی پارٹیسپیٹ ہوتی ہے۔ آپ کے بچے گھروں میں جائیں،
ان کے सबक को सबकी को चेक किया करें। इस तरह बच्चियों ने भी मेहनत की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिज मेहनती असातिज़ा टीचर की है, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। तलीमी सरगर्मियों की किसी किस्म की मालूमात आपको बदरिया वेबसाइट हम देते रहते हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे आपको पैगामात दिए जाते हैं, उसको गौर से सुना करें। मुझे पता है कि बच्चों को मोबाइल देना मना है, लेकिन वालिदैन उसको फॉलो करें। जहाँ आपको और मैसेज सुनते हैं कारोबारी एतबार से, इन मैसेजों को भी सुन के बच्चों की जो भी तरबियत के हवाले से दीगर मामला इंफॉर्मेशन को उनको पास ऑन किया है। भाई ये ख़वातीन की तरफ से थोड़ा सा शोर है, प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बस आप चंद एक टैबलो हैं, उलमाए किराम आएंगे, बच्चों की दुआ होगी, फिर आपको इंशाल्लाह इजाज़त देंगे। इस वक्त तकरीबन जमात नाहम और दहम में 48 बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसकी तफसील अल्हम्दुलिल्लाह रज़ाक साहब ने आपको सारी बता दी है। इस साल मैट्रिक में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर लिए थे वो महानूर आसिफ बच्ची है, तो अगर आई हुई है तो उसको भी इंशाल्लाह यहाँ स्टेज पे बुलाए जाए। शोबा हिफ्ज़ वफाक का इम्तिहान देने वाले बच्चों के वालिदैन से गुजारिश है कि हिफ्ज़ के बाद ये जो अब इस साल है जिन्होंने इम्तिहान दिया है, कम से कम मैट्रिक तक यहाँ से तलीम हासिल करवाएँ, ताकि आपके आगे अपनी मंजिल को भी याद कर सके बच्चे और तालीम भी हासिल करें। जैसा कि आपको मालूम है कि इक़रा के साथ साथ अदारा अल हरमैन, जैसे ये बच्चों ने बहुत अच्छे खूबसूरत बच्चे लग रहे थे, आप वीडियो में भी देख रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे जब मताब में चलते हैं तो अजीब एक कैफियत होती है, ये वही मंजर था। तो बहरहाल इन बच्चों को भी अल्लाह ताला अपने घर की सादत नसीब फरमाए। हजाज इकराम की अदारा अल हरमैन हजाज इकराम की खिदमत कर रहे हैं। आपके अजीज़ो कारम में से जो भी उम्रे का इरादा रखते हो वो अदारा अल हरमैन के दफ्तर से रब्ता कर सकते हैं। अदारा अल हरमैन अल्लाह ताला के फजल करम से और आपकी दुआओं से तरक्की के मनाज़िर तेज़ी से तय कर रहे हैं। इस साल अदारा अल हरमैन में अपनी 3 ब्रांचें, एक वाई ब्लॉक में, कैंट में, एक गुलबर्ग में, जो शाहिद इसरार साहब उसके ज़िम्मेदार हैं। कैंट में वाई ब्लॉक में मेरा बेटा है उसामा शाहिद, वो वहाँ होते हैं, और एक जामिया मदनिया करीम पार्क में, तो वहीं से वहाँ के रहने वाले वहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने अजीज़ों कारब को हमारे अदारे के दफ़ातर का तारुफ कराएँ। हज की पॉलिसी, लोग हर साल हज पे जाते हैं, आने वाली है चंद एक दिनों में। इसके जो वज़ीर हैं इंतहाई नेक हैं, मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हजाज इकराम को जहाँ अच्छी से अच्छी सहूलियत मिल सकें, सऊदी गवर्नमेंट से वो मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि हज बड़े आसान तरीके से हो सके। चंद दिनों में पॉलिसी आने वाली है। अदारा अल हरमैन ने इस साल 3 पैकेजेस बनाए हुए हैं, और आप ये चीज़ भी जान के खुशी होगी, लाहौर में वाहिद अदारा है पूरे लाहौर में जो हर 15 दिन के बाद उम्रा की ट्रेनिंग करवाता है। और उसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह कारी शफीक साहब जो मेरे नाज़िम तालीमात भी हैं, उनकी खिदमत ली हुई हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हज यानी उम्रे के लिए आपके अजीज़ कहीं से भी जाने वाला हो, ये नहीं है कि अदारा अल हरमैन के साथ जाए, उसको भेजें ताकि अमाल को सीख कर जाए। कितना पैसा लगा के जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि हमने उम्रे में क्या क्या अमाल करने हैं, कहाँ क्या कौन सा रुकन अदा करना है। तो उसके लिए आप दफ्तर में लिख करके उसका पता कर सकते हैं। आज हम यहाँ मसरूफ़ हैं, इसके बावजूद मेरे अदारे में हाँ जी उम्रे की आज डेट थी, तो वो उम्रे की ट्रेनिंग लोग ले रहे हैं। एक आपको ब्रोशर दिया गया है जिसमें तमाम तफसील दर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह अदारा अल हरमैन ने अमेरिका, कनाडा, बरतानिया में भी अपनी शाखें बनाई हैं। आपके जो वज़ीरों कारक मुल्क से बाहर है उनको भी कह सकते हैं कि इस साल हज में अगर जाने का इरादा हो तो अदारा के नंबरों पे या जैसे भी रब्ता कर सकते हैं। ख़वातीनों हज़रात और उलमा कराम, असातिज़ा कराम और टीचर हज़रात, मैं अपनी तरफ से अपने वालिद मोहतरम मंजूर अहमद साहब की तरफ से इस तकरीब में तशरीफ़ लाने पर फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दाखिले की फिर बात आई है, दाखिले के लिए आपको पम्फलेट दिया गया, उसमें सारी तफसील दर्ज है। हाँ जी, आप खुद भी वहाँ अपने चीज़ों को भेज सकते हैं। और जो दाखिला फॉर्म में चीज़ें लिखी होती हैं, बस यूनिवर्सिटी या अदारे उसके ऊपर कारामद होते हैं कि वो उसमें अपने नो कंसेशन
कंसेशन, नो आपको किसी किस्म का रिलीज नहीं है। लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अदारे में आए, मैडम सीमा आपके साथ मुकम्मल ताउन करेंगी, बल्कि इस मजलिस में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें, उनके अजीज़ो कारम में जो बच्चे यतीम गरीब हैं उनको इंशाअल्लाह हम इकरा में फ्री पढ़ाएंगे। जिनका हिफ्ज़ करने का इरादा हो, जो बच्चे यतीम गरीब हैं, ये मेरी बात सुन लें, अपनी आप फैमिलियों में जाके बात करें, जो मुस्तहिक है, जो डिज़र्विंग है, इंशाअल्लाह उनको हम फ्री पढ़ाएंगे। उसका एक तरीक़ाकार है, वो मैडम आपको अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। इसके साथ साथ जो तरतीब है अगली कि भाई ये बच्चों की तालीमी सतह, वो भी सारा इंशाअल्लाह वहाँ आपको तफसील से बता दिया जाएगा। वालिदैन एक चीज़ को नोट कर लें कि जो यानी ये मजमूई बात है, बात बच्चे घर में जाके नहीं बताते। इकरा में 27 फरवरी यानी कल से लेकर 5 मार्च तक नए साल की तैयारी के हवाले से अदारे में छुट्टियाँ बहुत कम देते हैं। आपके ज़हन में होना चाहिए आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, हमारी पूरी कोशिश है कि रमज़ानुल मुबारक में ये मैं बात कर दूँ कि अपने बच्चों को घर में सुनने सुनाने की तरतीब बनाएं। जो बच्चे हिफ्ज़ कर चुके हैं, ये दाईं तरफ बैठे हैं, बाईं तरफ बच्चियाँ बैठी हैं, अगर घर में ऐसा माहौल नहीं बनता, मेरे साथी से बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह इकरा में